क्या हो रही है ICSE grade 9 and grade 10 की public? This video is as promised. A lot of you have been confused about notice and email writing. If you are somebody who's writing the board exam in Feb end and March 2025, then this video is useful for you if you are looking for an authentic format for notice and email writing. Now, the topic is very easy. But a lot of people are confused because different schools teach different formats. Then you meet your friends from different schools and in classes and in tuitions, and then they discuss different things. And on the internet, you find several formats. Then Total English has another format. Like several workbooks have different formats. So I'm going to clear these doubts today. The video is going to be in two parts. Obviously, this is the first part where I'm talking to you. The second part is I'm going to screen record the format as I teach it, and I'm going to like stitch the two together. I don't have any fancy editors, so if you're expecting some fast cuts and some special effects, ऐसा सब नहीं है. तो तू अगर बोर होने वाला है तो भाई scroll up कर ले. This video is not for you. Also, you might question my credibility कि ये बंदा कौन है, हमको इसको क्यों सुनना चाहिए. Like मैंने तो ये format सुना है, मैं यही करूंगा. भाई तेरी मर्जी है, तेरे करना फॉलो कर, नहीं करना मत कर भाई. इट्स लाइक आई एम गिविंग आउट दिस एडवाइस बिकॉज आई केयर. And about my history, you can check it out. You can check me out on the internet and you can talk to your seniors about it. अगर मैं कुछ बोल रहा हूं मतलब वो है, अगर नहीं है तो नहीं है. अभी जब तक मैं दूसरा वीडियो नहीं डालता हूं या if I don't ever put up a notice that the format has changed, then what I'm about to teach you today is the format. Now what is it that people are confused about? I'll tell you something. Like look, ऊपर से बता दे रहा हूं ताकि तेरा टाइम वेस्ट कम हो. जरा पहली बात ना, इफ यू आर रियली वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फॉर्मेट फॉर एजुकेशनल पर्पस, देन यू शुड आइडियली हैव योर पेपर एंड पेन विथ यू राइट नाउ. तो go get a paper and pen and listen to what I'm saying. It's going to help you. I'm going to try and keep it as concise as possible. Now, in the notice, the only thing that the boards care about, okay, primarily, is your creative title. Like you can call it whatever you want to. I call it creative title. Then your actual title, the one that's given in the question paper. Then your what date it's happening on, so on. Then what time it's happening from and at is the location. There'll be two locations, the smaller location, a bigger location, and then obviously the content. Now this is the core format. इसके beyond जो भी चौचले है ना, वो पब्लिक क्रिएट करती है या टीचर्स क्रिएट करते हैं या स्टूडेंट्स खुद के मन में वो फियर्स क्रिएट करते हैं. बोर्ड्स नहीं केयर करता. ICSE का प्राइमरी function in this through this question objective through this question is to test your common sense. They want to see how, like, do you have your wit about you? Like, are you able to think on the spot? And that's why you notice all the question formats they keep throwing around the word application based. Suddenly अब सबको aware हो गया कि ICSE is supposed to be application based. It has always been application based. तो यहाँ पे common sense ज्यादा काम आएगा. Cosmetics के बारे में they don't care much. Alright. Now I'm going to switch. Also, the second thing that people are confused about is, so what kind of a comma should come, or should we put a colon over there? Should A and M में AM be small, big? जो भी doubts है, सारी चीजें मैं आज क्लियर करके दे रहा हूं तेरे को. अब मैं ये वीडियो ऑफ करूंगा एंड मैं डायरेक्टली स्विच ओवर करूंगा टू द स्क्रीन रिकॉर्डिंग. ऑलराइट, ऐसे करके यहाँ पे आना चाहिए था एंड देन वो स्मूथ ट्रांजिशन होता, बट मैं बंद कर रहा हूँ वीडियो. Alright guys, I am hoping all of you can see the screen that I'm writing on, and this is how I intend to teach you notice writing in ICSE. I hope my voice is also clear and audible. So the first thing you need to know is the format and the marking scheme. What you have is a creative heading and an exclamation mark that gets you 1 mark. Then you leave a line, that LAL is leave a line, and then you write AH. That's your actual heading, you get 1 mark. Then you again LAL, leave a line, and you write on, you leave a line, and you write from, you leave a line, and you write at, you leave a line, and you write the content. Alright, that goes up to at least 3 to 4 lines. Now this is your base format. So on you get half marks, from you get half mark, at it comes in 2 segments, so that's half and half, and then this is 1 mark. So 1 plus 1 2 plus 1 3 plus 1 4 plus 1 5. 5 marks in your pocket. All right, now I know you guys are confused. You're like, sir, wait a minute, our teachers told us not to leave a line, and so then our teachers have told us not to write on, from, and at also. So how do we go about doing all of that? अभी मैं तेरे को दिखाता है डिटेल में. ये प्रीव्यू था, प्रीव्यू. अभी मैं तेरे को डिटेल में दिखाता है. ये देख,
सपोज तेरे को है यू हैव एन इंटर हाउस ड्रामा कॉम्पिटिशन, ऑलराइट. सो the rule number one, you come up with a creative heading. Now here's a trick, all right? You guys have these forwards coming out to you, creative titles for notice. You must, I'm sure a lot of groups circulate these messages, but you don't need any of that. All you need is this one word, let's. All right, let's, with an apostrophe. So let's, and now suppose it's an inter-house drama competition. So let's act, and then an exclamation mark. All right, now first things first, does this have to be block or cursive? Well, I prefer a block format, but boards accepts cursive as well. What you need to focus on is this exclamation mark. This has to be there, all right? Now, a lot of people tell you that let's allowed nahi hai. Like teachers say कि ये apostrophe mark allowed nahi hai. That's not right. You are allowed to do whatever you want over here. This is completely legit, all right? So you can just go with let's. Now suppose it's an inter-house sports competition, so you go with let's play. Now this is inter-house drama competition, so I'm going with let's act. But let's say it's inter-house dance competition, then what you cannot do is let's dance. Now this is not allowed. If my actual heading is inter-house dance competition, then I cannot go with the word dance. That's not allowed because the word dance comes over, because the word dance already comes over here. So what I can do is I can go with let's groove, or let's break a leg, or let's move. You could go with any of those things and an exclamation mark. Now like I said, this कुछ भी चलेगा, कर्सिव भी चलेगा, ब्लॉक भी चलेगा, बट ये तेरा क्रिएटिव टाइटल हुआ, ठीक है? इसका तेरे को मिलने वाला है 1 मार्क. इसके बाद एक लाइन छोड़ने का. नाउ दैट्स अनदर कंट्रोवर्सी. सम पीपल से सर लाइंस नहीं छोड़ना होता, हमारी टीचर ने बोला नहीं छोड़ना है. भाई मैं तेरे को एक रूल बता देता हूँ, लीविंग लाइन्स का कोई पेनल्टी नहीं है. लाइन नहीं छोड़ेगा तो शायद इट लुक्स वेरी ऐसे लाइक not neat, but if you leave a line, it'll look better. So if you leave a line, no one's going to penalize you. You will not lose a single mark. मेरी गारंटी दे रहा हूं मैं तेरे को. तू लाइन छोड़, ठीक है? एक लाइन छोड़ और दूसरा लिख. Now this again, you can write it as blocks. You can write it as cursive. That's completely up to you. I prefer blocks. So inter-house dance competition. नाउ इसका तेरे को मिलेगा 1 मार्क. नाउ यहाँ पे बोला जाता है, दैट्स हमारे स्कूल ने बोला है एनुअल वर्ड यूज करने का. ये सजेशन है, इट्स नॉट अ कंपल्शन. तो ये स्कूल तेरे को सजेस्ट करिए कि यू ईदर गो विद एनुअल, यू कैन गो विद सिल्वर जुबली, यू कैन गो विद गोल्डन जुबली, यू कैन गो विद सम ट्रस्टीज नेम, डू व्हाटएवर यू वांट. इट्स अ सजेशन, नॉट अ रूल गाइज. Okay, so once again, I'm so sorry. Let's start something new neatly. Let's move an inter-house dance competition. अरे तू अभी स्पेलिंग पे मत जा मेरे, मैं अभी यार शाम का टाइम है, दिमाग चल नहीं रहा है. कॉम्पिटिशन, हाँ ठीक है, ये हो गया. अभी इधर ना नेक्स्ट रूल कि सर यहाँ पे ऑन, फ्रॉम एंड एट आता है कि नहीं आता है. इट्स कंप्लीटली अप टू यू. तेरे को ऑन, फ्रॉम एंड एट डालने का तो डाल, एंड तेरे को ऑन, फ्रॉम एंड एट नहीं डालने का तो मत डाल. सो बेसिकली यू कैन ईदर इंक्लूड द वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स गाइस, द वर्ड्स ऑन, फ्रॉम एंड एट, completely optional. You put it, you don't put it, both are okay. Now, I prefer putting it, so I will go on with on. Just makes life simpler. From and at. Now sir, इसमें अगर हम लोग डाल रहे तो O and N कैपिटल होगा क्या? ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, सब कुछ करेक्ट है. ऐसे को जैसे करने का कर, ये सब चौचलों में बोर्ड्स गिरता नहीं है. यू कैन गो विद व्हाटएवर यू वांट. सो ऑन, फ्रॉम एंड एट. अभी ऑन में तो डेट डालेगा. नाउ कल का डेट है 9th September. सो 9th September, कॉमा 2024 फुल स्टॉप. नाउ सर हमारी टीचर ने बोला है कि कॉमा एंड पंक्चुएशंस नहीं होना चाहिए. भाई नहीं डालेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगेन
if you put a comma and a full stop, that's completely legit and honestly you should put it. इसमें इतना सोचने का क्या है भाई, तू 10th तक पहुंच गया, तेरे को पता होना चाहिए यहाँ पे एक कॉमा आता है, यहाँ पे एक फुल स्टॉप आता है, डाल दे ना. So 9 September comma full stop. Now from पे obviously अगर enters dance competition in school, so you go on with the school timings. Let's say 9 o'clock the competition starts, 9 a.m. to 11 a.m. Alright, now sir ये A.M होना चाहिए, A.M होना चाहिए, A.M होना चाहिए कि A.M होना चाहिए. भाई सब अलाउड है. I ideally prefer A.M, तो यहाँ पे डाल दे A. and A.M. Both, everything is allowed. Trust me, board doesn't notice that. 9, so ये 9 ऐसे होना चाहिए 9 a.m. कि ये ऐसे होना चाहिए. भाई सब अलाउड है, सब अलाउड है मतलब सब अलाउड है. Trust me. You just need to know how to write, like just बेसिक्स वो लोग टेस्ट कर रहे तेरा कॉमन सेंस के, तेरे को टॉपिक समझा कि नहीं. नाउ इसमें एट जरूरी है. एट में यू हैव टू पुट हॉल. नाउ इवन इफ योर स्कूल डजंट हैव अ हॉल गाइस, इट्स अ फिक्शनल थिंग. यू डोंट हैव टू एक्चुअली बी गरीब हो यार मेरे स्कूल में ना हॉल ही नहीं है यार, मैं किधर करेगा. अरे फिक्शनल है ये, तू करना यार, हॉल डाल दे. डांस कंपटीशन हॉल में ही होगा ना यार, हॉल डाल और फिर तेरे स्कूल का नाम डाल. अब तेरे स्कूल का नाम अगर मधुमती, चुमरमती, चिंबटपटी, पड़पटी स्कूल है तो इतना बड़ा स्कूल डालने का जरूरत नहीं है. जस्ट पुट वन सिंपल नेम, लाइक आई एम गोइंग विद पोद्दार. ओके, इजी है, चिंगड़ू है. बट पोद्दार कुछ भी हो सकता है. पोद्दार तो कैफे हो सकता है, पोद्दार कोई ऑफिस हो सकता है, पोद्दार स्कूल है, मेरे को कैसा मालूम. तो मैं वर्ड डालेगा यहाँ पे स्कूल, पोद्दार स्कूल. अभी यहाँ पे लॉयल्टी दिखाने का टाइम नहीं है गाइस. लाइक इवन इफ योर स्कूल टीचर्स टेल यू तुम्हारे ही स्कूल का नाम डालने का, अरे तू बोर्ड पेपर लिख रहा है, nobody cares what school you are in. तू कोई भी स्कूल लिख के आ जा, it's all okay, just write a short name. So hall and पोद्दार स्कूल. फिर वापस से यहाँ पे आप कंटेंट चालू करेगा. अब कंटेंट इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट बिकॉज 3 चीजें कंटेंट में मैं देखने वाला है. ठीक है, अला मेरा लाइन चला गया. हाँ, 3 चीजें मैं कंटेंट में देखने वाला है. मैं क्या क्या देखेगा कंटेंट में, देख. फर्स्ट थिंग ना इन अ कंटेंट इज द ऑडियंस. तू किसके लिए लिख रहा है नोटिस. सो यू हैव टू राइट स्टूडेंट्स. अभी यहाँ पे बवाल मचेगा वापस से. ऐसा हम लोग को बोला है प्यूपिल्स ऐड करने का वर्ड. अरे भाई तू अंग्रेज, तू तेरे को जो करना है तू कर भाई. प्यूपिल्स भी अलाउड है, स्टूडेंट्स भी अलाउड है, सब कुछ अलाउड है. बस बच्ची वंटी बमाइन मत लिखे ना. लाइक जस्ट राइट अ प्रॉपर थिंग लाइक स्टूडेंट्स और प्यूपिल्स. अभी यहाँ पे ऑडियंस स्टूडेंट्स है, बट कौन से ग्रेड के भाई वो लोग, तेरे को किसके लिए लिख रहा है तू. सो स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 9 and 10, स्टैंडर्ड 9 and 10. तेरे को अगर ये कॉन्ट्रोवर्सी अवॉइड करने का ना तो डायरेक्टली राइट डाउन स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंडरी सेक्शन. Interested in participating in the, अब मैं ऊपर का पूरा नाम नहीं लिखा ना तो मैं लिखा अफोर mentioned event can give their names to. अभी तू किसको दे रहा है. चल मैं मिसेस शिंदे को क्रिएट करता है, ये एक आंटी है मिसेस शिंदे. अरे बट मिसेस शिंदे प्यून भी हो सकती है. मिसेस शिंदे कौन है, आर डांस टीचर. क्रिएट कर, तेरे स्कूल में नहीं है डांस टीचर तो बना उसको. बट बेसिकली द डेसिग्नेशन ऑफ दिस पर्सन, योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का जो डेसिग्नेशन है वो बहुत जरूरी है. तो ये डांस टीचर का तेरे को मार्क मिलेगा. मिसेस शिंदे आर डांस टीचर ऑन और बिफोर. ये तेरा तीसरा क्राइटेरिया. इफ द इवेंट इज हैपनिंग गाइस, इफ द इवेंट इज हैपनिंग ऑन 9 September, तो ऑब्वियसली मैं डेट्स उसके 10-15 दिन पहले लेगा ना. फिर मैं ऑडिशंस लेगा, एलिमिनेट करेगा लोगों को. सो एटलीस्ट 10 days पहले मेरे को चाहिए. तो ऑन और बिफोर September 1 अप्रोक्सीमेटली. इसमें जेन्यून वाला डेट नहीं है तो लेट्स से मैं अगस्त डाल देता है यहाँ पे. अगस्त 30, 2024 खत्म. अभी सब हम लोग की टीचर ने बोला है या नीचे डेसिग्नेशन एंड नाम, यहाँ पे डेसिग्नेशन एंड नाम आना चाहिए. भाई नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए. दैट्स इट. दिस इज योर नोटिस. नोटिस इज ओवर, द एंड. यू डोंट हैव टू पुट एनीथिंग ओवर हियर. दिस इज वेयर इट एंड्स. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज वंस यू आर डन मेकिंग द नोटिस, you draw a box around it. Okay, this is for neatness. So you know, once you draw a box, the entire work just looks very neat. Now don't go with my thing यार. I don't have the patience to do all of this. You're the one giving the exam. तू समझ गया ना क्या करना है तेरे को. एक बॉक्स बनाना है in short. ठीक है.
सो ये तेरा नोटिस हुआ। अभी इसमें वापस से तेरे को बता दे रहा हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वन लास्ट टाइम। अभी ये भी करेक्ट है, इसका भी तेरे को एक किधर गया, मेरे को ये सब यार फैंसी चीज ना, इसका भी 1 मार्क मिलेगा, इसका 1 मार्क मिलेगा। तेरे को ये तीनों वर्ड्स उड़ा देना है ना, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड देन यू कैन डू विद दिस। नाउ एक वेरी वियर्ड स्पीशीज होगा यहां पे जो बोल रहा है सर हम लोग को ना स्कूल ने डेट टाइम एंड वेन्यू सिखाया है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये बोर्ड का फॉर्मेट था, बट एवरीथिंग हैज टू बी लेफ्ट अलाइंड। तो ये वाला फॉर्मेट ना अवॉइड कर, अवॉइड ये वाला फॉर्मेट, प्रिफर ऑन फ्रॉम एट वाला फॉर्मेट। समझा तेरे को? अभी नेक्स्ट ईमेल। रुक पहले ये नोटिस को मेरे को सेव करने दे, कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो फालतू में मेहनत मेरा वेस्ट क्या ना यार। Alright guys, so this was good. I think I could hear myself when I saw the video. I think you can hear me quite well. अभी अपन ईमेल करेंगे, नोटिस हो गया। अभी अगर तूने नोटिस में ऑन फ्रॉम एन एट फॉलो किया है या फिर वो वर्ड्स नहीं लिखे हैं तो तू ये वाला फॉर्मेट फॉलो करेगा। क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूं? इन केस देयर इज एनीबॉडी ओवर हियर हु इज स्टबर्न एंड इज गोइंग विद डेट टाइम एंड वेन्यू, दोस वर्ड्स आई एम टॉकिंग अबाउट, then they are the only ones who will use the words to and subject in the email. If you're not going with date, time and venue, if you're going with on, from, at or not writing any of these, then you will not write the words to and subject. You will not write it no matter what teacher tells you to do, whatever, you will not include the words to and subject. Okay? So to and subject उड़ गया, वो तू नहीं डालेगा, तू directly start करेगा email ID के साथ। कैसा? Suppose you're writing the email, all notice and email topics are connected. So now let's say for hypothetical sake, we took the topic inter-house dance competition and your email is write an email to your principal seeking permission to use the hall for inter-house dance competition. ये मेरा topic है, ठीक है? अब मैं principal को लिख रहा है, तो मैं लिखेगा directly principal, margin से touch हो गए, blue color का margin है, principal @ अभी पोद्दार क्या था? स्कूल था ना, तो तू भी स्कूल वर्ड ऐड करेगा यहाँ पे, school.com। ये मेरा स्टाइल है, तेरे को इसमें से जो स्टाइल करने का तू कर सकता है। तू लिख सकता है प्रिंसिपल पोद्दार @gmail.com, सबसे मेन स्ट्रीम क्लीशे स्टाइल है वो, बट दिस वन इट गिव्स यू एन एज, राइट? लाइक सपोज तू किसी कोच को लिख रहा है, एग्जाम्पल दे रहा हूं तेरे को, तो तू यहां लिख सकता है एग्जाम्पल कोच सनी @cricketclub.com। तू किसी म्यूजिशियन को लिख रहा है तो म्यूजिक बाय रहमान @tipsmusic.com। You guys realize ये एक फिक्शनल चीज है, बट थ्रू योर ईमेल आईडी आई शुड गेट अ फेयर आइडिया ऑफ हु आई एम राइटिंग द ईमेल टू। ओके, सो ये मेरा स्टाइल है। तू मैनेजर को लिख रहा है, सपोज एक आखिरी दिखाता हूं, देख, मैनेजर @ कोई शॉप का नाम है, सपोज डेल computers.com। समझा? So this way you are not only giving me the designation of the person but also the company where the person works, so it makes life simpler. You can choose your old style of writing also, I'm completely okay with that। प्रिंसिपल पोद्दार @gmail.com तो लिख सकता है। एनीवे, तो यहाँ पे एक लाइन छोड़ेगा नीटनेस के लिए, लाइक आई टॉट यू, लाइन छोड़ के तू सब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट में एक्शन वर्ब्स का कॉन्सेप्ट याद रख। मेरे को यहाँ पे चाहिए परमिशन मांगने का था ना, तो मैं परमिशन से स्टार्ट करेगा। परमिशन टू यूज हॉल फॉर इवेंट। अब यहां पे ट्रिक क्या है कि सब्जेक्ट शुड नॉट बी लॉन्ग, 4 to 5 words preferably, all right, and 1 line, it should come in 1 line, not more than 1 line। so ये मेरा हो गया। अभी मैंने लिखा परमिशन टू यूज हॉल फॉर इवेंट, एक लाइन छोड़ के। अभी मैं लिखा नॉर्मल यहाँ पे डियर मैम, डियर मैडम लिखूंगा मैं, या फिर डियर सर लिखूंगा, बट व्हाट आई कांट राइट इज मैम। ये बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है गाइस। नाउ इस पॉइंट पे ना नॉर्मली मैं एक थंबनेल यहाँ पे डालता मेहनत करके, तो बोलता चेक माई लेटर राइटिंग ट्यूटोरियल ऑन यूट्यूब,
3-4 साल पहले डाला था तब मैं थोड़ा अच्छा दिखता था, पतला पतला था थोड़ा मैं, तेरे येलो टी शर्ट में एक लौंडा दिखेगा, लेटर राइटिंग सिखा रहा है आईसीएससी को, मेरा वीडियो है, वायरल था, अच्छा था, वो फॉर्मेट आज भी जिंदा है। तो वो लेटर राइटिंग का फॉर्मेट है, उसको देख ले, वही रूल्स यहाँ पे फॉलो करना है तेरे को फॉर email, ठीक है? So everything that you do in a formal letter is what you're going to do henceforth, only shorter. So I'll start with dear madam, comma, I can start from the margin, I can start from here as well, but I preferably start from the margin. So you begin from the margin itself, alright? Now margin to start karega and you'll write the introduction in, let's say, maximum 3 lines or 2 lines. Then you leave a line, then you write the body in 4 to 5 lines, then you leave a line and then you write the conclusion in 2 to 3 lines again, then you leave a line and then you write thanking you, yours, again leave a line, yours truly. You guys can go with faithfully also if you want to, but यही दो तेरे लाइफ के options है, you can't choose anything else apart from this. So yours truly, comma, you write Sheshav वाडिया, बट शेषव वाडिया कौन है? 99% तुझे नोटिस में डेसिग्नेशन दिखाई देगा। नोटिस का क्वेश्चन 99% ऑफ द टाइम स्टार्ट्स एज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल राइट अ नोटिस टू बी पुट अप टू इनवाइट किड्स फॉर सो एंड सो ब्ला ब्ला ब्ला। अब वो डेसिग्नेशन ना यहाँ पे काम आता है, तो यहाँ पे तू लेके शेषव वाडिया, नीचे लेके हेड बॉय। अब ये डेसिग्नेशन इंपॉर्टेंट है गाइस, डेसिग्नेशन नहीं दिया है ना अगर क्वेश्चन में तो तू घुसाएगा डेसिग्नेशन, ठीक है? बट ये डालना बहुत जरूरी है। अब तू सोचा सर क्या आप भी शॉर्टकट मार रहे हो यार, हम लोग को यही तो जानने का है इंट्रोडक्शन में क्या लिखने का। देख मैं तेरे को सिखाता है। सब डिलीट मारा। आईपैड का एडवांटेज ना ये है, फटाफट टेक में ना सब डिलीट हो जाता है। गुड, चल ठीक है, अभी ध्यान दे यहाँ पे। मैं लिखा डियर मैडम, मैं मार्जिन से स्टार्ट करेगा। वन ऑफ द मोस्ट घटिया मिस्टेक्स यू कैन मेक इज टू स्टार्ट योर ईमेल विथ I am शेषव वाडिया। ये बकवास है, रॉन्ग नहीं है, मार्क्स मिल भी जाएगा शायद, मैं आई हेट इट। अरे तू यहाँ पे शेषव है तो तू यहाँ पे क्या केशव हो जाएगा क्या? तू शेषव ही रहने वाला ना, तो तू बाद में वापस से 2 बार अपना नाम काहे को लिखेगा? तू एक ही बार लिखना शेषव वाडिया, उसको तेरे में इंटरेस्ट नहीं है। शी वॉन्ट्स टू नो व्हाट द टॉपिक इज, सो द इंट्रोडक्शन इज फॉर द सब्जेक्ट गाइज, नॉट यू। तेरे को हाय माय नेम इज राहुल, नाम तो सुना होगा, अबे तेरे में किसी को इंटरेस्ट नहीं है लाइफ में, तू डायरेक्टली सब्जेक्ट डाल यहां पे। तो तू स्टार्ट करेगा विद एज, तू लिखेगा एज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल आई एम राइटिंग दिस ईमेल टू seek your permission to conduct inter-house, यहाँ पे तो इवेंट का नाम लिखेगा, डांस कॉम्पिटिशन इन द हॉल। ये तेरा टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब तू एक लाइन छोड़ेगा, लीव अ लाइन, फिर तू यहां से मार्जिन से स्टार्ट करेगा। कंटेंट तेरे को नोटिस से मिलेगा, मैम द इवेंट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन सो एंड सो डेट एट सो एंड सो टाइम, ओके? तो तू वो डिटेल्स डालेगा यहाँ पे। फिर तू वापस से लीव अ लाइन करेगा और तू यहाँ पे लिखेगा मैम आई रियली होप दैट यू कम अप विद द पॉजिटिव, आई हैव चेक्ड द डेट्स, इट्स नॉट क्लैशिंग विद एनीवन एल्स एंड होपफुली यू विल हेल्प अस आउट ओवर हियर। सिंपल शॉर्ट में लिखने का, एकदम तू इधर फ्रेंडशिप करने नहीं आ उनके साथ, एकदम शॉर्ट में लिखने का, खत्म तेरा ईमेल। ओके, सो दैट्स इट गाइस। अब जितना सीखा उससे ज्यादा कुछ भी जो तू सोच रहा है ना वो फालतू का ओवर थिंकिंग है। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स। मार्जिन से स्टार्ट करने का, TO एंड SUBJECT वर्ड्स नहीं यूज करने का, डेसिग्नेशन होना चाहिए। योर्स ट्रूली या योर्स फेथफुली लिख सकता है, योर्स में अपोस्ट्रोफी नहीं आएगा कभी भी लाइफ में, सो अपोस्ट्रोफी मत डालना। बस इतना पॉइंट से को याद रखना है। अब मेरे को एक और चीज याद है, नोटिस का रैंडम सेगवे ले रहा हूं यहां पे, बट लास्ट ईयर बोर्ड टॉपिक पेपर 2023 मार्च का बोर्ड पेपर हैड अ टॉपिक इन नोटिस राइटिंग, राइट अ नोटिस टू बी पुट अप फॉर रेमीडियल लेक्चर्स।
Now the first thing is a lot of kids didn't know the meaning of the word remedial only. वो लोग remedy लिख रहे थे. Remedy मतलब ऐसा medical aid वगैरह. But remedial classes are basically extra lectures to help you basically. Remedial is to help you, to aid you in subjects you are weak in. Now these kind of topics नो, या फिर suppose tour की बात चल रही है या travel की बात चल रही है, ये वाले टॉपिक का एक बहुत बड़ा हर्डल है दैट ऑन क्या लिखने का, बिकॉज ऑन इज एक्चुअली मल्टीपल डेट्स ना. तू जो रेमीडियल क्लासेस लिख रहा है वो तो मल्टीपल डेट्स पे होगा, 1-2 वीक का प्रोग्राम होगा. तो इसका एक सोल्यूशन है, मैं लिखेगा रेमीडियल क्लासेस का लेते हैं, लास्ट ईयर का बोर्ड टॉपिक. सो लेट्स स्टडी हार्डर. Okay, so remedial lessons for math. वो भी मत लिख, रेमीडियल लेसन्स लिख सिर्फ. ओके, वो मैथ अपन नीचे डालेंगे कंटेंट में. रेमीडियल लेसन ना. अब देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो सिर्फ एक वर्ड घुसाना है यहाँ पे, एंड वो वर्ड होगा, रुक पहले इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करने दे मेरे को. कट पेस्ट इधर डाल दिया थोड़ा. अभी एक वर्ड में क्या घुसाएगा, मैजिक वर्ड यहाँ पे रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन फॉर रेमीडियल लेसन्स. ओके, ट्रस्ट मी, वापस बोल रहा हूं, बोर्ड्स यहाँ पे तेरा कॉमन सेंस चेक कर रहा है. तुझे रेमीडियल क्लासेस के लिए तू लोगों को इनवाइट कर रहा है, वो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे. अब सडनली सब कुछ सीधा हो गया. अब जो भी तेरा ऑन, फ्रॉम एंड एट है ना, वो इसका डेट है, रजिस्ट्रेशन का डेट. सो तेरा एट होगा स्टाफ रूम, पोद्दार स्कूल. अब रेमीडियल लेसन्स का जो डिटेल्स है ना, वो तू कंटेंट में घुसाएगा. यहां पर तू बोलेगा स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड्स 9 and 10 इंटरेस्टेड इन एक्स्ट्रा मैथ्स लेसन्स एंड साइंस लेसन्स कैन रजिस्टर देयर नेम्स विद रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स and seek more information for them. The classes will happen from, अभी suppose तू registration 9th को रख रहा है, 9th September, तो obviously remedial lessons उसके बाद होगा ना, 9th के बाद. तो 10 days after 9th registration आएगा उसके बाद. तो maybe remedial lessons will happen from 19th September तू लिखेगा यहाँ पे. तू समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ ना. इन द प्रीवियस टॉपिक, ये जो ऊपर वाला टॉपिक था अपना, यहां पे ऑन फ्रॉम एन एट इसका इवेंट है, 9 सितंबर डांस का इवेंट है. तो डांस के इवेंट के लिए रजिस्ट्रेशन होने का है तो पहले का डेट डालेंगे. बट अगर तेरा रेमीडियल क्लासेस आगे के डेट्स में होने वाला है तो तेरा रजिस्ट्रेशन 9th को हो रहा है. रेमीडियल क्लासेस आगे होगा, नॉट पीछू. ये ट्रिक है. टूर्स, ट्रैवल, कोई भी चीज में जहां मल्टीपल डेट्स लिख रहा है, डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन वर्ड घुसा दे, लाइफ सही है. ओके, नाउ अब तेरे को ये जमा नहीं जमा मैं ज्यादा कुछ कर नहीं सकता हूं. ये कर क्या, मैं 5 on 5 मैं गारंटी दे रहा हूं तेरे को. मेरे बच्चों को तो आता है और मैं बोल रहा हूं तेरे को, मैं ला के दूंगा तेरे को मार्क्स. थोड़ा भरोसा रख. इट्स ऑल अबाउट दिस स्ट्रैटेजी, फेथ, कॉमन सेंस एंड बिलीफ. गाइस, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्व्स. बोर्ड्स इज नॉट फिनिकी, एवरीथिंग एल्स इज जस्ट एडेड ओवर थिंकिंग वाले इश्यूज जो लोग घुसाते हैं. ऑल्सो वर्कबुक्स को अवॉइड करो. वर्कबुक्स और वो सब में जो भी टॉपिक्स आते हैं, दे आर नॉट ऑलवेज रिलायबल. बोर्ड्स इज नॉट स्टूपिड. सम ऑफ द लाइक द मिनट यू सी अ टॉपिक वेयर द ईमेल एंड नोटिस आर नॉट कनेक्टेड एट ऑल, समझ जाने का कि ये गफला है, इन लोगों को आता नहीं है बोर्ड्स का सेट करना है. बोर्ड्स में तेरा नोटिस एंड ईमेल हमेशा कनेक्टेड टॉपिक होगा. ठीक है, आई गेस इट हेल्प यू गाइज. इफ यू गाइज नीड मी फॉर एनीथिंग, आई एम राइट हियर. यू कैन फॉलो मी ऑन Insta, or if you know me, if you're in Mumbai, you can just drop in Mumbai. I'm at Parla, I'm at Opera House, I'm at Chembur, I'm at Ghatkopar, I am at Lal Bagh, I'm at Mazgaon. Whenever you guys want to just drop by for a quick hug, you can come in. I'm always here for you guys. अगर तू मुंबई के बाहर, मैं इंडिया के बाहर बोलना था, मुंबई के बाहर रहता है तो भाई मैं सिर्फ तेरे को दूर से लव कर सकता हूँ. ठीक है, चल, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, ओवर एंड आउट.